नमो लोये सौर्यन्तानं नमो लोये सौर्यदानं नमो लोये सौवायिर्यां नमो लोये सौजायां नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विरो मङ्गलं गौतमोनि मङ्गलं कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निरुद्ध निराकार। પરમાત્મા પ્રકાશ આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં ગાથા 80 સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો થયો છે. હવે આજે 81મી ગાથા લઈએ છીએ. 81મી ગાથાની અંદર પણ મિથ્યા દ્રષ્ટિની વાત કરે છે. એટલે ઉપોદ્ઘાતમાં ત્યાં પણ એમ જ કહે છે કે आगे फिर मिथ्या दृष्टि के लक्षण कहते हैं. 80મી ગાથામાં એ વાત હતી, અહીંયા 81મી ગાથામાં પણ આગળ એ વાત કરે છે. ગાથા 81. अहम वरः ब्राह्मण वैश्य अहम अहम क्षत्रिय अहम शेष पुरुष नपुंसक स्त्री अहम मन्यते मूढ़ विशेषम. 81મી ગાથાના અનુવાદમાં કહે છે કે મૂઢ વિશેષમ મનુતે અહમ वरः ब्राह्मण. मिथ्या दृष्टि अपने को ऐसा विशेष मानता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ. अहम वैश्य अहम क्षत्रिय, मैं वणिक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ. अहम शेष, मैं इनके सिवाय शूद्र हूँ. अहम पुरुष नपुंसक स्त्री, मैं पुरुष हूँ और स्त्री हूँ. इस प्रकार शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है. सो ये सब शरीर के है, आत्मा के नहीं है. मिथ्या दृष्टि अपने को ऐसा विशेष मानता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, वणिक हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शेष इनके सिवा शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ. इस प्रकार शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है. सो ये सब शरीर के है, आत्मा के नहीं है. ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ. હું વર બ્રાહ્મણ વૈશ્ય હું, હું ક્ષત્રિય હું, શેષ પુરુષ નપુંસક નારી હું, માને મૂળ વિશેષ. મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ પોતાને આ પ્રમાણે વિશેષ માને છે. વિશેષ માને છે એટલે જે પર્યાય છે એ વિશેષ છે, તો એ પર્યાય રૂપ પોતાને માને છે. અહીંયા વિશેષનો એવો પણ અર્થ થાય છે. જે છે એ નહીં, જે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ તો માનતો નથી, પરંતુ જે પર્યાય છે, વર્તમાન જે ગતિ છે અને એમાં જે પર્યાય અને એમાં જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે, તો એ શરીર વગેરેને એ સ્વ માને છે, પોતે છે એ રૂપે એમ માને છે. પોતાનું જે સ્વ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ એને તો એ માનતો નથી, એનો તો એને ખ્યાલ નથી, એનો વિકલ્પ પણ નથી. પણ જે એને પર્યાયમાં દેખાય છે એને એ પોતાનું સ્વરૂપ માને છે. એટલે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જે પોતાને આ પ્રમાણે વિશેષ માને છે કે હું ઉત્તમ બ્રાહ્મણ છું, હું વાણિયો છું, હું ક્ષત્રિય છું, હું શૂદ્ર છું, હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, કે હું નપુંસક છું, આવી રીતે શરીરના ધર્મોને અજ્ઞાની આત્મા રૂપ માને છે. એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે કે એમ જે જીવ કર્મજનિત ભાવોને આત્મ સ્વરૂપમાં આરોપે છે
તે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. આ બધું કર્મને કારણે છે, એટલે એને કર્મજનિત ભાવ કર્યા. આજે એની માન્યતા જે છે એ ઔદયિક ભાવે છે, એટલે કે જે કર્મના ઉદય છે એને ઉદય પ્રમાણે એને એ ગતિ ને શરીર ને એ બધું જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું છે, જે ગોત્ર વગેરે, એ બધું કર્મજનિત છે. એટલે એ કર્મજનિત ભાવોને આત્મ સ્વરૂપમાં આરોપે છે, પોતાના સ્વરૂપને વિશે માને છે. પોતાના સાચા સ્વરૂપનો તો એને ખ્યાલ પણ નથી. એટલે એને આ જ વાત પોતાની લાગે છે કે હું મનુષ્ય છું, તો પછી બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું, વગેરે છું. અને આ વાત મિથ્યા દ્રષ્ટિની લીધી છે. તો અહીંયા તો એક મનુષ્યની પર્યાયની અપેક્ષાથી વાત સમજાવી છે, પણ એમાં ચારે ગતિ માટે એમ સમજી લેવું. જે ગતિમાં જે ગયો છે એ ગતિ અને એ ગતિને અનુરૂપ જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે, એ ઊંચું નીચપણું જે કાંઈ પ્રાપ્ત થયું છે, એ રૂપે જ પોતે પોતાને માને છે. એટલે કહે છે કે એમ જે જીવ કર્મજનિત ભાવોને આત્મ સ્વરૂપમાં આરોપે છે તે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. બ્રાહ્મણ આદિ ધર્મ કર્મોદયથી પ્રાપ્ત થયેલા ધર્મો છે. અજ્ઞાનમાં પરિણમેલો તથા સ્વશુદ્ધ આત્મભાવનાથી રહિત બે વાત સાથે લીધી. એક તો જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે, મિથ્યાત્વ સહિત જે જ્ઞાન છે તે અજ્ઞાન છે, એટલે અજ્ઞાનમાં પરિણમેલો તથા સ્વશુદ્ધ આત્મભાવનાથી રહિત એવો જીવ એ મૂઢાત્મા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. શુદ્ધ આત્મભાવનાથી રહિત, શુદ્ધ આત્મામાં એકાગ્રતા કરવી એ શુદ્ધ આત્મભાવના, એનાથી એ રહિત છે. એવું તો એને ક્યારેય કર્યું નથી. એટલે એને આત્માનું જ્ઞાન ભાન નથી. અને ભગવાનના જ્ઞાનમાં તો એ વાત આવી છે કે જે આત્માનું જ્ઞાન છે તે જ જ્ઞાન છે, બાકી બીજું બધું જે છે તે જ્ઞાન નથી, એ બધી માહિતી છે. આત્માનું જ્ઞાન એ સમ્યક જ્ઞાન છે. પછી જેને સમ્યક જ્ઞાન હોય એને પછી 6 દ્રવ્ય 9 તત્વની યથાર્થ શ્રદ્ધા પણ હોય. પણ જ્ઞાન કયા જ્ઞાનથી સમ્યક દર્શન છે? તો કે આત્માનું જ્ઞાન છે એનાથી સમ્યક દર્શન છે. કંઈ આ દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ કરી અને આપણે જે આ યાદ રાખી લઈએ, શાસ્ત્રોના પાઠને યાદ રાખી લઈએ, સૂત્રો યાદ રાખી લઈએ, તો એ દ્રવ્યશ્રુત છે, પરંતુ એ જ્ઞાનથી એ સમ્યક જ્ઞાની કહેવાતો નથી. ગમે તેટલી પંડિતાઈ કરતો હોય, ગમે તેટલા એને પુસ્તકો લખ્યા હોય, છતાં એ જ્ઞાની ન કહેવાય. જ્ઞાનીની વ્યાખ્યા જ આખી જુદી છે. જ્ઞાની તો આત્માને જે અનુભવે છે, આત્માની અનુભૂતિ કરે છે અને એને જ્ઞાનમાં પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, એ જ્ઞાની છે. જેણે અતિન્દ્રિયપણે આત્માને અનુભવ્યો છે એ જ્ઞાની છે. એટલે એ જ્યાં સુધી એવું કરતો નથી ત્યાં સુધી એને ભાન પણ નથી કે પોતે કોણ છે. એટલે શ્રદ્ધા ખોટી છે, વિપરીત શ્રદ્ધા છે. અને વિપરીત શ્રદ્ધા છે એટલે પછી પોતાને એ અનેક પ્રકારે માને છે. વાણીઓ માને કે બ્રાહ્મણ માને, એ ગમે તે માને, પણ એ બધું મિથ્યાત્વ છે. તો આ 81 ગાથાનો વિસ્તાર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. પરમાત્મ પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3 વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 25 ઉપર ગાથા 81 ઉપરનું પ્રવચન. आज तीसरी निकादश के लक्षण कहते हैं हो वरु बमणो वैसु हो पतियो हो पुरुषो नपुसो विठी हो मणि मुंडो विशेष। मिथ्या दृष्टि अपने को ऐसा विशेष जानता है, विशेष मनुष्य है ना, सब में श्रेष्ठ में ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। मिथ्या दृष्टि है कैसे ऐसे मानते हैं? आत्मा में ब्राह्मण की तो सभी की दशा है।
मैं वैश्य हूँ, मैं वणिक हूँ, वाणिया हूँ। वाणिया शब्द है व्यापार करने वाला, सब व्यापार। वणिक पूजा हो तो ये वणिक है, व्यापार नाम वणिका हुआ। मैं क्षत्रिय हूँ, मिथ्यादर्शी है, कैसे मानता है? क्षत्रिय तो शरीर की जात है, आत्मा क्या है? या क्षत्रिय हम गरास्य है, हम खाती है, हम क्षत्रिय है। न था तुम कहो न बोला एम के બે નામે બોલાવા એને, ત્યારે રખાવે એને મૂળ છે। मैं शेष सिवाय क्षुद्र हूँ। क्षुद्र होता है संदावाद में, आत्मा क्या क्षुद्र? तो शरीर की दशा है भगवान, तुम तो उस दशा से भिन्न है। मैं पुरुष हूँ, लो मैं आदमी हूँ। आदमी हो तो आत्मा है ना, भीतर बुद्धि नित्यानंद स्वभाव भगवान तुमको है नहीं। जैसे हम पुरुष कहाँ से आ गया? हम पुरुष है, हम नपुंसक है। हिजड़ा हिजड़ा होता है पावैया, और स्त्री में हूँ, मैं तो स्त्री हूँ भैया, बड़ा दिन में स्त्री हूँ। अरे भगवान स्त्री भीतरी के साथ हूँ? ये तो शरीर की जात है, स्त्री शरीर का। भगवान अंदर वितराग नित्यानंद स्वभावी विराजता है। ये थे हूँ, ये थे हूँ। नहीं भाई, समझ में आया? नपुंसक स्त्री इस शरीर के भावों को मूर्ख अपने मानता है, तो ये सब शरीर के है, आत्मा के नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय नहीं है, ये ब्राह्मण आदि भेद कर्म जनित है। कर्म नाकार ने उपाधि आई है, अपना स्वभाव आत्मा है, परमात्मा के नहीं। क्या परमात्मा? अपना अपना परमात्मा प्रकाश है नहीं, भगवान परमात्मा स्वरूप है। वितराग निजानंद परमानंद लक्षण एक स्वभावी प्रभु, उसके ये ब्राह्मण क्षत्रिय सब है। ये तो बाहरी कर्म जनित उपाधि है। उसको हमारे हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, शूद्र है, अरे चंडा हम है। भाई चंदा तुम नहीं, ये तो शरीर की स्थिति है भगवान। तुम तो वितराग नित्यानंद स्वभाविक प्रभु है नहीं। पर्याय का भेद भी नहीं तेरे में। शरीर की अवस्था तो नहीं, पर मैं तो त्रिकाली वितराग नित्यानंद सहजानंद स्वाभाविक हूँ। ये दृष्टि में लेना बापू जी के बात है। पहले संजय दर्शन करना, उसमें आनंद पुत्रा। ये तो साधारण बात नहीं है। समझ में आया? यहाँ पर ऐसा है कि निश्चय ब्राह्मण आदि भी कर्म धन, इसलिए सब तरह आत्मज्ञानी के त्याग रूप है। आत्मज्ञानी को मैं क्षत्रिय वाली त्याग है। सम्यक दृष्टि को मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य त्याग है। मैं ऐसे नहीं। समझ में आया है? ऐसी बात है। परमात्मा प्रकाश अभी तो शहर में दोपहर को समय सार, ये परमात्मा प्रकाश है ना। तो भी जो निश्चय नहीं कर आराधना योग देखो, वितराग सदा आनंद स्वभाव, पूरा में वितराग नित्यानंद लिया था, वितराग सहजानंद लिया है, पास में है। वितराग सदा आनंद ऐसा है ना? बोला मैं वितराग नित्यानंद लिया था, वितराग सदा आनंद एक स्वभाव, सदा आनंद एक स्वभाव। भगवान तो सदा आनंद वितराग एक आनंद स्वभाव ही है।
ये आराधन योग वितराग सदा आनंद एक स्वभाव हैं, एक लेना एक स्वभाव वितराशी एक लिया, एक क्या है अंदर नहीं है, कोई खबर नहीं है। हिंदी में नहीं है, एकादशी वो तो 80 में चला गया, एकादशी की बात है। वितराग सदा आनंदित स्वभाव, निःशुद्धात्मा, देखो अपना निःशुद्धा पैसा ना, पर नहीं परमात्मा पर सीधा दी तो उसका है आ रहा। तो निज शुद्धात्मा है ना, ऐसा स्वशुद्धात्मा है ना पास में, देखो वितराग सदानंद एक स्वभाव स्वशुद्धात्मा नहीं योजती संबंधात करोती। देखो वेदों को लगाता है, मैं क्षत्रियों और ब्राह्मणों ऐसा वेदों को वितराग सदानंद में जोड़ता है, ये मिथ्या दृष्टि है, मूंड है। हम आदमी है, स्त्री है। अरे प्रभु आदमी कौन है, तो जड़ की दशा है, उसका जिसको अभिमान है तो मिथ्या दृष्टि है। वितरानंद एक स्वभाव से विपरीत चीज है, भिन्न है, वो चीज से तेरी चीज भिन्न है। समझ में आया? ये शुद्धात्मा में इन भेदों को लगाता है। देखो मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, अर्थात अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानता है, इसे पुरुष न पुरुष मानता है, वह कर्मों का बंद करता है, मिथ्या दृष्टि नया कर्म का बंद करता है। वही अज्ञान से परिणित हुआ, अज्ञान से परिणित हुआ। निज शुद्धात्म तत्व की भावना से रहित हुआ, निज शुद्धात्म तत्व है। शुद्धात्म तत्व भावना रहित हो, संस्कृत है, मूढ़ात्मा है। चाहे तो साधु नाम धरा कर हो, पर हम आदमी है, हम क्षत्रिय है, हम ऐसी स्त्री है, चाहिए अर्जी का नाम मानते हैं तो सब मूढ़ात्मा मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानवान नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। लोग ऐसा है, किसका है इसकी खबर नहीं। अब दिगंबर पुस्तक है, पुस्तक बहुत छपा है, उसमें ये पुस्तक है नहीं, चलते हैं। समझ में आया? तो पहली पुस्तक 46 में छपी, दूसरी पुस्तक 140 वर्ष पहले छपी, 65 वर्ष पहले, फिर 40 वर्ष पहले, फिर अभी भावनगर छपी, 3 छपी है। समझ में आया? ये तो दृष्टांत तरीके उसने दिया है कि जैसे व्यभिचारी स्त्री हो, काम काज करती हो सो घर का, पर उसका लक्ष्य तो पुरुष ऊपर है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपना लक्ष्य तो अपना आत्मा ऊपर है। कोई कामकाज आदि करते हैं, दिखते हैं, छठा अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं। अंतर्दृष्टि तो विनायक स्वरूप में ऐसी दृष्टि है। ये दृष्टांत देकर दृष्टांत दिया कि कोई स्त्री शांत से शब्द कदाचित ऐसा शब्द है, समझ में आया? पति की हरियाती में पर पुरुष से कोई हो जाए तो उसका दोष बाहर नहीं आता है। ऐसे जिसके माथे सम्यक दर्शन आत्मा का आनंद ब्रह्म परमात्मा जिसकी दृष्टि में आया है, शुद्ध निरंजन नित्यानंद प्रभु सहजानंद भगवान आत्मा जिसको दृष्टि में आया है, जिसकी पर्याय का स्वामी सहजानंद भगवान अपना स्वरूप है, इसको कदाचित कोई कर्म का निमित्त का संग में कोई राग आदि आ जाए और दोष लगे तो दोष की कोई कीमत नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? वो तो दृष्टांत देकर सिद्धांत सिद्ध करना, और दृष्टांत केवल दिया
थर्ड धर्म आते हैं, नर नारी को प्यार आते हैं, तो दाखला होते हैं। શું થાય? પણ એસા ભગવાન આટલા બધો अनार जैन शासन में बड़ी नुकसान होता है। मान सच बात आई, ऐसा न करना चाहिए। एना विचार करी नहीं उसमें क्या है, ग्रंथ किसका है, कौने लिखा है। हाँ हाँ, अरे तो भाई कल जाने वाला पंडित जी, उसने प्रश्न किया कि हमारे सम्यक ज्ञान दीपिका का आधार देखना है, ત્યાં कोई पूछे न ત્યાં बारामती में है, तो सबको समझना आता है। 1946 के साल में धर्मदास 48 में गुजर गई, संमत 48, उसकी 46वीं हरियाती में अपने पोते ज्ञान सागर में मुंबई छपाया। ये पुस्तक यहाँ मैं पहले देखा था चौके में, तो अभी छपाया नवा 40 वर्ष हुआ। तो मेरे तो देखने 54 वर्ष हुआ। पहले ये पुस्तक, यही पुस्तक था, देखो यही पुस्तक था जूना पुराना। अभी कैसे छोटे में मैं जंगल में वहां जाकर वहां से थे हम, तो उसके हमारी लीनता अंदर में थी ना बहुत। तो ये शास्त्र देखते थे हम, तो बहुत देखते थे, क्या चीज कहते हैं। आप पुस्तक था, ये पुस्तक यहाँ आया भाई को बताने के लिए। उसके 93 पाने में है जूनी पुस्तक में, नई पुस्तक में 80 पाने है। अपने आप पुस्तक में अभी छुपा है ना, एम 115 ऊपर है, नई छपी अभी 115 में है। ये तो या हिंदी है। फूलचंद जी चालती भाषा में बनाया है। ये तो शब्दों ने शास्त्र तो दिगंबर शुल्क का है, अभी चालती भाषा में उसमें ही लिखा। देखो जैसे जिस ये शब्द मिला है उसके, जिस स्त्री के मस्तक पर अपना पति है, सात एम लिए शब्द है। कदाचित कदाचित की बात यहाँ पे है। स्त्री पर पुरुष के निमित्त से गर्भ भी धारण करे तो भी उसमें दोष लगता नहीं, इसलिए बाहर पड़ते नहीं हो। जैसे कोई पुरुष के मस्तक से, कैसे हैं मस्तक के ऊपर, स्वरूप मस्तक के ऊपर स्वस्थ में ज्ञान की परम धन परमात्मा है। जिसकी दृष्टि में परमात्मा जैन सर्वर्ते अंदर सुचिदानंद क्या है, नित्यानंद सुचिदानंद स्वभाव, ऐसी जिसको दृष्टि हुई वो कदाचित कोई राग आदि हो અને उसमें दोष हो, पर वो माथे धनी है ने पुरुष स्वामी, तो वो दोष की कोई कीमत है एम कहते हैं। जैसे निजराधिकार में कुंकुंदाचार्य कहा, अमृतचंद्राचार्य लिखा, भोगी का ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। क्या भोग निजरा को हेतु है, ऐसा कहना है उसको। समझ में आया? इस क्यों कुंकुंदाचार्य का वचन है, ज्ञानी का भोग निजरा को हेतु है। उसका अर्थ ऐसा लेख देखो, ज्ञानी भी भोग करे नहीं उसको निद्रा होती है, ऐसा है उसका अर्थ। इससे नहीं है, यहाँ तो ज्ञानी आत्मा का आनंद का स्वभाव पर दृष्टि है, परमानंद का नाद का अंतर में अनुभव है। उसको कोई राग आदि आ जाए, चारित्र दोष हो, दर्शन पाव में कहा ने कि दंसन भट्ठा न सृजंती, चरित्र भट्ठा सृजंती। चारित्र का दोष वाला है तो उसको ख्याल में है क्या दोष मेरा मेरे में, तो ये तो मोक्ष जाएगा। ये सब चारित्र दोष टालकर पर दंसन भट्ठा न सृजंती। जिसकी श्रद्धा मिथ्यात है, राग से धर्म होता है, पुण्य से धर्म होता है, निमित्त से मेरा में लाभ होता है, ऐसी मिथ्या दृष्टि दर्शन भ्रष्ट है। ये भले पंच महावृत पालते हो तो अपन ये दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्रों से भ्रष्ट है, ऐसा दर्शन भाव में आया है पहले, समझे? तो वस्तु तो ये बताने का इसमें इरादा है धर्मदास का कि दर्शन जना सम्यक दर्शन भ्रष्ट नहीं, उसको कोई चारित्र दोष हो जाए तो उसकी कोई विशेष कीमत यूं कहते हैं। चारित्र भ्रष्ट हो
પણ દર્શન દર્શન નથી તો उसका ચારિત્ર પ્રાપ્ત कर मोक्ष जाएगा, પણ दर्शन भ्रष्ट है। यानी श्रद्धा जो विपरीत त्रिलोकनाथ सहजानंद प्रभु। समझ में आया? आया समझ? वितराग नित्यानंद एक स्वभाव जय सर्व प्रकारे ऐसी उपाधि भूत वितराग नित्यानंद एक स्वभाव। ऐसे सूर्य की दृष्टि हुई। समझ में आया ना? ये कष्ट में ही आया, ये कष्ट में आया ना। निश्चय नहीं ते उपाधि भूते, निश्चय नहीं यथा दृष्टि में आदरणीय है तो वितराग सदानंद एक स्वभाव स्वसुधात्मा। हा 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 विकारी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान। ये शुद्ध आत्मा ये सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समझ में आया? हाँ ऐसी चीज स्पष्ट। अरे न बैसे तो पण सच का विरोध क्यों करोगे? न रूचे कदाची दृष्टि, दृष्टि न हो पण वस्तु की विरोध करना सच का नुकसान है। उसका आत्मा का लोक में विरोध हो जाए, बहुत विरोध हो जाए। यहाँ बासी ये तो ये आधार दिया तीनों का। 78 की साल में तो हम कितना दिन व्याख्यान बंद कर दिया था। समझ में आया? हमको अंदर से ध्वनि आई थी, ओम ध्वनि जब आई तो कोटला दिन में व्याख्यान बंद कर दिया था। बोटाद में है, बोटाद तो गादी गांव है ना बोटाद, तो त्या हम 15 दिन 20 दिन व्याख्यान नहीं वाते थे। शास्त्र एकांत में वाते थे। उसमें धर्मदास श्लोक का आया था। ओहो बात को यथार्थ कहते हैं। हाँ 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 जिसकी दृष्टि तत्व ज्ञान हुआ उसको कदाचित चारित्र का दोष हो तो पण वो भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। चारित्र से भ्रष्ट है, दर्शन से भ्रष्ट नहीं कहने में आता है। समझ में आया? अनेक व्रत आदि पालते हो, पंचमहाव्रत आदि, पण दर्शन भ्रष्ट है। ये व्रत से ही धर्म होता है मानते हैं। ये तो दर्शन भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट ने चारित्र तीनों संदर्भ बहुत बचे है। शीतल प्रसाद है तो क्यों दिखाई नहीं? शीतल प्रसाद तो मौत वांचना तुम्हें ज्ञान दीपिका देखना ऐसा दिखाई क्या? आता है क्या? है क्या? कोई पुस्तक होगा ठीक है। पुस्तक हाँ हाँ वस्तु का दिगंबर शास्त्र पुस्तक है। ब्रह्मचारी सुलभ धर्मदास जिसके ऐसा लिखा है उसमें जो 49 गाथा है समय साल की, उसमें लिया है कि व्यक्त जो भगवान आत्मा शिवाय जो क्षुद्र व्यक्त है नहीं है उससे आत्मा भिन्न अव्यक्त है। 49 बोल है, 49 6 बोल और व्यक्त का, तो उसमें पहला बोल ऐसा है। समझ में आया? जो ज्ञेय है और व्यक्त है उसका अर्थ कैसा लिखा है ये बताना है। अपनी स्वतंत्र से बताया है कि 6 द्रव्य सब लोग जो ज्ञेय है व्यक्त है उसमें जीवन है, इसमें अव्यक्त है। उसका अर्थ ऐसा लिया उसने 6 द्रव्य से भिन्न होते हैं तो भगवान आत्मा सप्तम हो जाता है। समझ में आया? उसमें से लिया बात ऐसा है ना, 6 द्रव्य सर्व लोग, 6 द्रव्य सर्व लोग जो ज्ञेय है जो व्यक्त है, 6 द्रव्य सर्व लोग से जीव अभिन्न है, भगवान आत्मा उससे भिन्न है। 6 द्रव्य सर्व लोग से जीव भिन्न है। उसका खुलासा किया उसने कि सप्तम हो जाता है आत्मा।
समझ में आया? ये नया अर्थ क्या है? ये आमा है, उसका अर्थ क्या है? ऐसा अर्थ कोई दूसरा भी किया न किया नहीं। समझ में आया कि छह द्रव्य स्वरूप लोग, भगवान सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ है, छह द्रव्य स्वरूप लोग देखा है। હવે वो ज्ञेय है અને आत्मा भी उससे भिन्न ज्ञायक है, तो भिन्न है तो सप्तम हो गया। समझ में आया? है तो छह द्रव्य में है। मंडी जी, हाँ, जो ऐसा अर्थ तैयार किया है, जब हम पहले देखा था वहाँ सप्तम हो जाते, यहाँ से निकाला है, आबुल में से निकाला है। समझ में आया? इतनी तो उसकी गंभीरता विचारणा। सप्तम हो जाता है ऐसे कौन बोलते हैं कभी? समझ में आया? पास ऐसा है, छह द्रव्य स्वरूप ज्ञेय, उससे भिन्न भगवान विनायक, सप्तम क्यों हो जाता है? छह द्रव्य से भिन्न। छह द्रव्य का तो एक समय के पर्याय में जिसको ज्ञान होता है। हाँ, समझ में आया? सूक्ष्म है भगवान भिन्न दर्शन, बहुत सूक्ष्म है भाई। हाँ, ज्ञान की एक समय की पर्याय में छह द्रव्य का ज्ञान, छह द्रव्य में अनंत सिद्धों केवल योग सबका ज्ञान हो जाता है। पर्याय के ज्ञान की एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। स्व प्रकाश में द्रव्य, पर प्रकाश में छह द्रव्य। समझ में आया? हाँ। ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो कहा नहीं, 70-18 जाता। ज्ञान की एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है सदा सर्व जीव को। गजब काम किया ने भाई, એની ખબર નથી। द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो ही जनाता है। स्व प्रकाशक है न, एक ज्ञान पर्याय स्व प्रकाशक है न। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय में द्रव्य आत्मद्रव्य पर्याय में अनुभव में जाता है सदा सर्व जीव को। પણ જીવની दृष्टि ત્યાં नहीं थी, उसको ख्याल नहीं आता। दृष्टि पर्याय ऊपर ने राग ऊपर, छह द्रव्य में आत्मा पर्याय में जानने में आता है, ऐसी दृष्टि करते नहीं है। समझ में आया? यहाँ तो मेरे दूसरा कहना है कि एक समय में ज्ञान की पर्याय में सारा आत्मा अनुभव में आता है, तो एक समय में ज्ञान की स्वपर प्रकाशक ताकत है, तो स्व आता है। ऐसे एक समय की पर्याय में पर छद्र भी एक समय की पर्याय में पर प्रकाशक जानने में आता ही है। समझ में आया? अल्प प्रकाश पर की प्रकाश में पर्याय रूपी है, तो उसकी दृष्टि क्या इतना जानते ऐसा लग गया रे। समझ में आया? क्या कहते हैं भाई? या तो सर्वज्ञ वितराग, परमेश्वर त्रिलोकनाथ में मार्ग है प्रभु। ज्ञान की एक समय की पर्याय में यहाँ कहता है कि छद्र आता है पर ज्ञेय है न, तो एक समय की पर्याय इनमें से भिन्न है। एक समय की पर्याय में छद्रव्य का ज्ञान होता है, वो छद्रव्य से भगवान भिन्न है। ऐसा आत्मा का, आत्मा उसे भिन्न है। समझ में आया? तो अंतरनी बात है भगवान। ये कोई वाद विवाद यहाँ મળે ऐसी नहीं चीज, कोई शास्त्र पढ़ने से भी यहाँ मिलती नहीं चाहिए ऐसी चीजें। देव ध्वनि से भी नहीं मिलती, ऐसा है ना परमात्मा प्रकाश में। देव ध्वनि से भी जो आत्मा प्राप्त नहीं होता भगवान, सारा मुनि गंधर आदि की शास्त्र रचना उसके भी आत्मा प्राप्त नहीं होता। हमें ये तो अपनी पर्याय में स्वसन्मुख होकर
पर्याय में द्रव्य जानने में आता है, पर सन्मुखता नहीं है, दृष्टि में आत्मा अनुभव आता है, ऐसा ख्याल नहीं आता। और एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाश के कारण स्वतो अनुभव आता है, पर अनंत बीजा द्रव्य भी पर्याय में जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? तो पर प्रकाश सारा लोग जानने में आता है, ऐसी ताकत है। पर दृष्टि संकोच के कारण दृष्टि सन्मुख नहीं, यानी पर्याय की रुचि में दृष्टि के पर्याय में सारा लोग जानते हैं, ऐसी ताकत की प्रतीति उसको आती नहीं। समझ में? पर्याय पर बुद्धि है અને पर्याय की आत्मी ताकत है, तो इसकी खबर नहीं। समझ में आया? અહીંયા કયા કે સપ્તમ हो जाता है। एक समय की पर्याय में द्रव्य का ज्ञान होता है, पर वो पर्याय द्रव्य का ज्ञान किया तो ये ज्ञेय व्यक्त सद्रव्य से तो भगवान भिन्न हो गया। सद्रव्य से ऊपर अकेला आत्मा रह गया। नंदन जी मार गए साई भगवान। ज्ञानी को कोई राग आदि हुआ और राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, राग को जानना ऐसी पर्याय प्रकट हुई, क्योंकि स्वप का भान हुआ, स्व प्रकाश का भान हुआ तो राग का ज्ञान होता है। क्या राग ऐसा भी प्रकट हुआ तो राग का क्या है, तो राग का तो अल्प दशा की बात है, पर सारा लोक उसमें जानने में आता है, ऐसी उसकी ताकत है। एक समय की पर्याय में स्वपर प्रकाश इतनी ताकत है। छतें एक समय की पर्याय कहेंगे पिरुण भाई आया कि नहीं? वहीं बैठा है, ये आधा माना था, क्यों कहीं समझ में आया? हाँ। एक समय में ज्ञान की पर्याय द्रव्य में मिलती नहीं, लोक में पर्याय मिलती नहीं। छतें एक समय की पर्याय में पर्याय रहकर द्रव्य को जानते हैं, द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर पर्याय द्रव्य को जानती है, और वो पर्याय लोकालोक में जाती है ना, तो लोकालोक पर्याय में आता नहीं। इतनी ताकत है, क्रेज इतनी अनंतगुणी ताकत है, इतना लोकालोक है, इससे अनंतगुणा लोकालोक ने अनंतगुणा काल हो आया ने दर्शन आ गया है परमात्मा प्रकाश में, कि मंडप है तब वेली चलती है, वेल जब मंडप ત્યાં चलती, पर वेली में ताकत ऐसी है कि आगे जाने की, मंडप नहीं। ऐसे लोकालोक का मंडप है, इतना तो जाना, पर उससे अनंत गुणा हो तो ज्ञान जाने तो ऐसी उसकी ताकत है। समझ में आया? हमारे तो यहाँ थोड़ा कहना था कि इसमें सप्तम हो जाते ऐसा लिखा भाई, એને સપ્તમ हो जाते એને लिखा है, तो પેલા વાંચા જब કીધું ઓહો स्वतंत्र ध्वनि तो ये यहाँ है, सद्रव्य स्वरूप, सद्रव्य में तो अनंत सिद्धू आ गया, अनंत सिद्धू अनंत केवलियो सिद्ध है आ गया, और लाखों केवलियो भगवान पास विराजते हैं ત્યાં ये भी आ गया, અને तीर्थंकर हो गया। सद्रव्य स्वरूप लोक ये तो ज्ञेय है, पर ज्ञेय है। भगवान
स्वज्ञेय है, ये परज्ञेय से भिन्न है। समझ में आया? आओ मारे प्रभु છે। जो 16 दिन है तुम्हारा 60,000 ना जाने वाला है। आओ मारे છે प्रभु। એમાં કોઈ ટીકા ટિપ્પણી કરે તો ત્યાં ચલે નથી બાપા। હે હા હા હે કોણ આપતા હતા? એ કોઈને આપે નહીં। એના વખાણ લખ્યા હોય તો છાપતા નહીં, નિંદા લખે તો એને ठीक लागे करे। में जितनी बुद्धि है इतना दिए बताए। बराबर। हाँ हाँ और तो इसके अंदर में योगदान हो क्या क्या पर से समझा सकते हैं। हाँ 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 क्या समझ लिया है ना समय का। अपना गुरु आत्मा है, क्योंकि पर्याय उसको आदर करके द्रव्य, तो गुरु ही अपना आत्मा है। पर गुरु तो निमित्त है, व्यवहार से पीछे कहने में। हाँ अपनी पर्याय अपना सत्सन्मुख झुकती है तो ये गुरु हुआ। समझ में आया? उससे जानने में आया। देव भी अपना आत्मा है, दिव्य शक्ति के धन्ना आता है ना वो कलश में। अपना देव ही देव देव नहीं आता। सूर्य जब देव है प्रकाश है आता है ना कलश में आता है। ऐसे भगवान आत्मा स्वयं देव ने प्रकाश है। हाँ 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 चैतन्य प्रभु अपना स्वरूप ये देव है, देव शक्ति के धरनारा प्रभु। ये देव है। यहाँ ये देव आए है। ये तो परदेव है, साक्षात भगवान हो तो परदेव है। हाँ तो स्थापना निक्षेप है। भाव निक्षेप वाला भगवान हो तो उत्तर से पर्दे सद्र में गिरी में जाते हैं। पंडित जी मार्ग ऐसा है भगवान। आ तो भगवान पासे थी, भगवान जाने आपते हैं बोलते हैं ऐसा ही तो लगता है। हाँ भगवान कहते हैं कि वहाँ ऐसा है भाई। समझ में आया? સ્વદ્રવ્ય સ્વરૂપ લોક ये પછી વ્યક્તિ के बाह्य ત્યારે भगवान आत्मा ज्ञेय से भिन्न, व्यक्त से भिन्न उसको अव्यक्त कर रहा। समझ में आया? पूर्णानंद का नाद जिसकी पर्याय में सारा द्रव्य जानने में आया और ये पर्याय में लोका लोक जानने में आया। ऐसा जो भगवान द्रव्य जो है पर्याय ने एक ही लगी। एक पर्याय स्वद्रव्य ने जाना ना लोका एक लिए पर्याय नहीं। पर्याय तो ये व्यक्त है तो उसमें द्रव्य अव्यक्त है। समझ में आया? ओ संतो ये तो गजब काम किया। दिगंबर मुनियो ये केवड़ी ना वीरा भुलावे एवी उसकी वाणी है। अंदर में चोट लगी जाए है। समझ में आया? कहीं तो पुस्तक में उसने सप्त में बताया, ये पुस्तक का दृष्टांत दिया है मर गया भाई। हाँ सप्तम हो जाता है उसका खुलासा किया। दृष्टांत दिया है। अरे तुम्हारे कितनी निंदा किसकी करनी है? पंडित जी समझे? અહીં તો નામ આવ્યું છે ને એટલે આમાં पुस्तक छुपाया ने इसमें नाम आया है। नाम आया पर तो पुस्तक किसका है ये उसमें आया है नाम। એટલે કરી સમજે ને तेरे पास आया पूज्य श्री कानजी स्वामी ग्रंथमाला पुष्प पहलो
એટલે જાણે અહીંનું પુસ્તક ભાવનગર વાળાએ 80,000 નિકાલાય ને હીરાલાલ આવ્યા છે નથી આવ્યા? हाँ बैठे हीरालाल जी उद्घाटन समय में 80,000 दिया है उसमें साहित्य मैं दूसरा ऐसा 1.5 लाख होगा 1 लाख अभी आया है शांति भाई है कि नहीं क्या गया ये शांति भाई से जो 1 लाख दिया अभी 80,000 उसमें 1 लाख दूसरा ऐसा 2.5 लाख साहित्य प्रस्तुत करना हीरालाल जी ने हीरालाल जी मऊ में मूंगा जैसा है बहुत उदार है रुचि भी है यहाँ आया ना कि पूज्य श्री कांजी स्वामी ग्रंथमाला पुस्तक पहला है पुस्तक है जाने पर आ तो पुस्तक स्थापना में पहला है અહીં क्या पुस्तक कि नाम आया ना क्या पर माथे लिखा है ना श्री क्षुलक धर्मदास जी विरचित ये तो भूल गया था वो तो करते आप लोगों को करते भगवान हमारे साथ ऐसा आरोग्य में नुकसान है भाई। वो खुद लिखा है माथे लिखा है छापा माथे लिखा है यहाँ नाम तो यहाँ भाई छपा को कह तो भावनगर तरफ से मूल तो हीरालाल जी तरफ से तो परमात्मा श्री क्षुलक धर्मदास जी वीरती कांजी स्वामी वीरती थे अरे भगवान शरीर का नाम है कि कांजी स्वामी आत्मा क्या है तो इतना बताना था कि आज सप्तमो हो जाने वाला क्या दृष्टांत है उसको तुम्हारे क्या निंदा कितनी करनी है भाई सद्रव सर्व लोक लोकालोक सद्रव में लोकालोक अनंत सिद्धो लाखों के ओलियो वर्तमान तीर्थंकरो सब ज्ञेय में आता है न एक ज्ञान में व्यक्त है उसका ज्ञायक आत्मा एक किला है भिन्न ये परज्ञेय तरीके है स्वज्ञेय तरीके ज्ञायक से भिन्न है दिखाई प्रश्न જોયું નથી જોયું આ પુસ્તક ને આ પુસ્તક પેલા 78 में ये वांचू बोटाद में नदी में 1 लाख खाली पानी 1 लगा 78 में 54 वर्ष हुआ 1 लाख की जिंदगी नहीं है। अरे भगवान हाँ तो पूर्व का संस्कार था नहीं अंदर में भूल हो गई ना आ गई यहाँ अंदर में आई ये बात तो ऐसे भाई क्या कहे आए तो ये बताना है कि सदृढ़ स्वरूप शू काके છે अनंता सिद्धो अनंता निरोधना जीवो केवलियो तीर्थंकरो ये तो आ ज्ञायक भावनो पर ज्ञेय तरीके है स्वज्ञेय तो ज्ञायक भिन्न रही તેથી કહ્યું ને જ્ઞેય તે વ્યક્ત છે વ્યક્ત એટલે બાહ્ય છે समझ में आया कितनी गंभीरता अमृतचंद्राचार्य कितनी गंभीरता कुंकुंदाचार्य ने एमा थी सप्तमु निकाला उसने अरे ये दृष्टांत दिया ही कि एमा तो क्या अरे ये दृष्टांत बोले यहाँ का अरे भगवान बापू तुम ऐसा न कर भाई सद्रव सब लोग ज्ञेय है व्यक्त है दूसरी चीज है उससे भिन्न है एम देना है व्यक्त है सद्रव स्वरूप लोग दूसरी चीज है और उससे जीव अन्य है ये दूसरी चीज सद्रव है दूसरी चीज है सब केवली सिद्धू भागी दूसरी चीज है समझ में आया वाचनाराओं आ बधु लक्ष्य लेवो ध्यान में रखना पुस्तक में 1946 में छपा है
उसकी हयाती में उसने छाप्या, नाम ठाम सब है અંદર એને પોતાની હાજરીમાં છપાયું. 48 દેશ છૂટી ગયો. मंदिरों में शास्त्र भंडार में मिल जाएगा, तलाश करें है अगर अपने अपने मंदिरों में शास्त्र भंडार में तलाश करें है मिल जाएगी. બધા ઠેકાણે है ને બધા ઠેકાણા જૂની પ્રત है. आ नवी भी बहुत है. आ नवी आई है ना 134 में 40 वर्ष पहले, वो भी बहुत बंदर में जी हाँ. પ્રભુ આ શું કરે છે? એક બાઈ ને લોઢાના ભૂકા મૂકી, લોઢા લોહાકા. પછી પરદેશ દેશની હતી તો એની આ દેશની ઓલી દેશની હતી, उसकी माँ बाप प्रदेशना था, तो उसको प्रदेश में है एम करिए लगाओ, लोहा का ढगला करी अग्नि लगाओ. बाई कहते हैं अरे प्रभु क्या करते हैं, उसको खबर नहीं उसको. प्रभु उसकी दया कर जो उसकी भाई આવે છે દાખલો. એક મોટી બાઈ કોક છે કે નામ શું આપણે કે બધું યાદ નથી, તમને યાદ છે હિંમતભાઈ? એ બાઈ છે, કુબાઈ હતી, ગુજરી હતી દેશની, પણ એ બાઈનું પિયર પરદેશમાં. એટલે આ લોકો જાણે કે એના ગામની છે, વિરોધ આપણા દેશની વિરોધી છે. હા, એમ કરીને સળગાવી, લોહાના ભૂકા બનાવી, લોઢાના ફળ ફળ इतनी बोली. प्रभु क्या करते हैं उसको खबर नहीं. प्रभु इन्हें दया कर दी. ये आत्मा है. समझ में आया? समझ में नहीं आया. ये बाई को समझ में नहीं आया. न्याय आया नहीं. एक बाई थी कोई प्रदेश में बड़ी, नाम भूल गए हम, बड़ी देश सेवा वाली बाई. बाई बाई नहीं समझता स्त्री तो भाषा देश ની સેવા नहीं होती, पर देश का मानस है, उसने ऐसा कल्प्या कि वो उसका पीर की थी तो ये देश की है, मैं क्या अपना देश का विरोधी है. लोहाना भूका करके लोहा लोहा लोहाना सળગાવ્યા ગાતે છાટકા બેસાડી માથે માથે બેસાડી દે બાજુ लोहा फट फट फट. बाई इतनी बोली, प्रभु क्या करते हैं उसकी हमारा अभिप्राय की खबर नहीं उसको. प्रभु उसकी दया कर दी. हाँ हाँ समझ में आया? यहाँ तो कहता है वो उसने सत्य में लिया, उसने दृष्टांत दिया उसको, तुम्हारे उसको यहाँ का खत्म करके पंथ भ्रष्ट है, ये पंथ भ्रष्ट को खंजर से काट डालो, ऐसा आया छापा में आया. अरे भगवान, ये दृष्टांत में सिद्धांत सिद्ध करना था. समझ में आया? दृष्टांत ऐसा करो नहीं करना, ये बात उसकी नहीं है. समझ में आया? हाँ बस आई है. पहला बोलो. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. ગાથા 82 નો સ્વાધ્યાય, આખો સ્વાધ્યાય આવતી વખતે થશે. આજે ગુરુદેવે બીજી ઘણી વાત કરી. સુલભ ધર્મદાસજી ની જે વાત કરવામાં આવી, અને એમણે જે લખ્યું છે એ સમ્યક જ્ઞાન ટીકાની અંદર એ ઉદાહરણ જે આપ્યું છે, એના ઉદાહરણને લઈને કેટલાક લોકોએ એ સોનગઢવાળા આવી રીતે માને છે કે સ્ત્રીથી ભ્રષ્ટ નું અનુમોદન કરે છે વગેરે, એવું કંઈક લખ્યું. એટલે ગુરુદેવ એની સ્પષ્ટતા કરતા આ બધી વાત લીધી કે એ પુસ્તક તો એમનું છે, ધર્મદાસજીનું છે, અને એમાં એ ઉદાહરણ એ રીતે લેવામાં આવ્યું હતું. એ ઉદાહરણ આપણને સમજાવ્યું, અને સાથે આ બીજી વાત જે લીધી એ રીતે વાત લીધી કે એ
એ ધર્મદાસજી તો કેવા વિદ્વાન હતા અને કેવી એમણે દ્રષ્ટિ આપી. એ 49મી ગાથાની અંદર, સમયકારની 49મી ગાથાની અંદર અવ્યક્તના બોલ આવે છે, તો એની સાથે સરખાવી અને ગુરુદેવે સમજાવ્યું કે ધર્મદાસજીએ તો એમ કહ્યું કે આ 6 દ્રવ્યરૂપ લોક છે એ જ્ઞેય છે અને એનાથી જુદો ભગવાન આત્મા સપ્તમ છે. આવો દ્રષ્ટિકોણ અગાઉ ક્યારેય વાંચવામાં આવ્યો નહોતો અને એટલે એમની દ્રષ્ટિ કેટલી બધી નિર્મળ હતી એ વાતો સમજાવી કે એ જ પુસ્તકની અંદર આ વાત પણ લખવામાં આવી છે એમ કરી અને આખી વાત ને સ્પષ્ટ કરી. અને 82મી ગાથાનો હવે વિસ્તાર આવશે, હજી આપણે આવતી વખતે લઈશું. 81મી ગાથાનો વિસ્તાર એમણે પૂરો કર્યો. સુખધામ અનંત સુખ